ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਾਗਮ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਇਆ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੈਂਕ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਰਾਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਨੌਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਰਟਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਪਾਏ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਲਾਅ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਵਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਕੈਤ ਰਜਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਸਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰੇਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਖਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨਸੀਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਅਲਾਈਨ ਵਿਦ ਐਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਔਰ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਓਪੋਜ਼ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਰਾਓ, ਦੇ ਕੁਡ ਬੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਮੇਨਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਲੈਂਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ 40-50% ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੇ ਆਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ। ਵੀ ਆਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਰਿਵਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੀ। ਵੈਨ ਐ ਸੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਰਿਵਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਮੀਨ ਕਿ ਸਿਰਫ GDP ਦੇ ਨੰਬਰਸ, ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਫॉर ਆਰ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ GDP 'ਚ ਤੇ ਸਿਰਫ 15-16% ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 40% ਆਬਾਦੀ ਜੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ, ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਔਖ ਝੇਲਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਓ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਾਟਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਿਆਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ 39%, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ 23% ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵਰਲਡ ਐਵਰੇਜ ਯੀਲਡ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ 800 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 1800 ਕਿਲੋ ਵੀ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੀ ਵੀ 400 ਸਮਥਿੰਗ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਉਸੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਤੇ ਯੀਲਡ ਰਫਲੀ 3% ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵਰਲਡ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਸਿੰਪਲ। ਸੋਚੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ 'ਚ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੀਲਡ, ਕਾਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇ ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਬਣਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਕਾਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਸਸ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਟਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਤੇ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਝੇਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। सर चलते हैं नेशनल सेगमेंट पर। देश में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस की काफ़ी चर्चा हो रही थी काफ़ी टाइम से, और सर सेंटर ने टैक्सेस कम किए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में, और उन्होंने स्टेट्स को भी कहा कि आप भी कम कीजिए, लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। और ओपोजिशन लीडर्स हैं जो वो कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम जी भी कह रहे हैं कि ये स्टेट से ही जा रहा है पैसा, आपने कम किया और वो भी स्टेट की जेब से ही जा रहा है। देखिए ये जो पैसा कम हुआ है ये सेंट्रल सेस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से जा रहा है जी। इनफैक्ट अब लेटेस्ट अपडेट पी चिदम्बरम जी भी अपनी गलती मान चुके हैं। उन्होंने बोला कि आई स्टैंड करेक्टेड। देखो जोश में ओपोजिशन का काम है, उनको लगता है उनका काम है सिर्फ अपोज करना जी। अगर एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है जो जनता का भार कम कर रहा है, उसमें या तो क्रेडिट लेना चाहते हैं या उसमें कमियां निकालना चाहते हैं जी, राइट। तो ये उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि ये सारा का सारा इसका जो बोझ जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही जाएगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये डिमांड बिल्कुल ठीक है कि अब स्टेट गवर्नमेंट भी अपना वैट कम करें, क्योंकि एग्जॉर्बिटेंट वैट लिया जा रहा है जी। अब कुछ स्टेट्स ये कह रही हैं
कि भाई हमारे पास और कोई इनकम सोर्सेस नहीं है। क्यों नहीं है जी उसका जवाब दीजिए। कि अगर आप सिर्फ जनता को टैक्स लगा के ही अपनी सरकार चला रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ तो गलत कर रहे हैं। जी आपके यहाँ पे और इनकम सोर्सेस क्यों नहीं है? आपके यहाँ पे जीएसटी ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है? आपके यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा क्यों नहीं है? राइट, ये सारी चीज़ें तो उस स्टेट गवर्नमेंट को सोचनी है ना। अब वो कहते हैं जी हमारे पास तो सिर्फ वैट आता है, पर जीएसटी का भी तो शेयर आता है। जी आपके वहाँ से जितना ज़्यादा जीएसटी जनरेट होगा उतना ज़्यादा शेयर आएगा। तो मेरे को ये लगता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स को एक तो फाइनेंशियली ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। जी उनके अंदर भी एक कंपटीशन होना चाहिए, पॉजिटिव हेल्दी कंपटीशन, कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रेंड मैन पावर कौन कंपनीज को दे पा रहा है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए। जैसे इंडियन गवर्नमेंट जाती है, ऐसे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स को बड़ी स्ट्रांगली पॉलिटिक्स को छोड़ के जाना चाहिए अलग अलग कंट्रीज में, अपनी अपनी स्टेट के लिए इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट करनी चाहिए। जी अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इट्स गुड, आज हम भी टंकी फुल करवाते हैं, राइट। रेट कम हुए हैं तो हम भी इसको आज टंकी फुल कराएंगे। जी बिल्कुल सर। एक क्वाड लीडर समिट हो रहा है सर जापान में, उसमें मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन पे मेनली बात हो सकती है, उसके डेवलपमेंट पे बात हो सकती है। तो देखिए, आपको याद होगा 3-4 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि जब हम श्रीलंका क्राइसिस, बांग्लादेश क्राइसिस, पाकिस्तान क्राइसिस या ऐसे अलग अलग कंट्रीज जो क्राइसिस में हैं, तो हम ये बात कर रहे थे इंडिया अकेले नहीं, क्वाड नेशंस को साथ में लेके उनकी इकोनॉमिक सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोर और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फोकस करें। इससे क्या होगा, इंडिया से भी बोझ कम होगा और बेनिफिट इंडिया को डेफिनेटली होंगे। इनफैक्ट यही इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि सिक्योर ट्रेड रूट्स, जी जॉइंटली ये जो मेजर 4 कंट्रीज हैं, आसपास की कंट्रीज की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स पे काम करें। जी इससे क्या होगा कि ज्यादा कंट्रीज क्वाड के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आएंगी और बाय डिफॉल्ट इंडिया के भी इन्फ्लुएंस स्फेयर में आएंगी। तो यही इस क्वाड समिट में मेजरली होगा। इसके अलावा टोक्यो में ये जो समिट हो रहा है, बाइलेटरल मीटिंग्स हमारे प्रधानमंत्री सारे देशों के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे, इंडिविजुअली 1-to-1। अभी हम जापान ने प्रॉमिस किया है $39 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत बड़ा बाइलेटरल ट्रेड हुआ है। मैं अगेन याद दिलाना चाहूँगा पंजाब गवर्नमेंट को भी कि हमारे पंजाबी वहाँ पे बहुत हैं, बाइलेटरल एग्रीमेंट हुआ है, इसका हम अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि एंड में जो लोग लोकल इकोनॉमी को समझे वो हमारे यहाँ से वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम बड़ा अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। ऐसे यूएस के साथ भी वी आर हैविंग वेरी स्ट्रांग, वो हमारे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं ही हैं। तो क्वाड इंडिया के लिए एक बहुत ही पावरफुल एसोसिएशन हो सकती है, टू बैलेंस द पावर in this region, at the same time to give India secure trade routes। जी तो आई थिंक वी विल इसको हम क्लोजली फॉलो करेंगे कि इसमें से क्या चीज़ें निकल के आती हैं और उसका इंडिया की इकोनॉमी पे, सिक्योरिटी पे और रीजन की सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। जी। और सर, ऑस्ट्रेलिया में नई सरकार आई है, एंथनी एल्बनीज़ी नए पीएम बने हैं और लेफ्ट ओरिएंटेड थोड़ा माना जा रहा है उनको, तो उस सरकार का वहाँ पे नई सरकार बनने का प्रभाव हमारे रिश्तों पे पड़ेगा? देखो, पॉजिटिव पड़ने की चांसेस ज़्यादा हैं जी। हालांकि एल्बनीज़ी गवर्नमेंट इज़ अ लेफ्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, जी, राइट, स्लाइटली सेंटर टू द लेफ्ट, पर उन्होंने अपने इलेक्शन में भी बार बार इस बात पे जोर दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के भारत के साथ जो रिश्ते हैं, जो एसोसिएशन, जो पार्टनरशिप्स हो रही हैं, उसको और डीप करेंगे। जी। तो बट पिछले कुछ टाइम में ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन बहुत ख़राब हुए हैं और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी चाइना पे ही जाती है। जी। जिन्होंने काफ़ी बार जब कोविड की फैलने के ऊपर उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी डिप्लोमेटिक डिसीजन लिए। उन्होंने अपनी असर्टिवनेस, जो अग्रेसिवनेस दिखाई, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उनके काफ़ी प्रोडक्ट बैन कर दिए, ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी इंपोर्ट बैन कर दिए, उनके साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी की। तो इस वक्त लोएस्ट स्टेज पे हैं। तो ये चाइना के लिए भी एक नई गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो चाइनीज़ ओरिजिन के हैं, मलेशियन चाइनीज़ ओरिजिन के हैं। तो बट एट द सेम टाइम अभी तक, क्योंकि अभी आज तो उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लेनी है जी, अभी तक तो इट हैज़ बीन क्लियर दैट दे आर फोकस्ड टुवर्ड्स यूएस, इंडिया एंड इंडिया, मतलब क्वाड ओरिएंटेशन और क्वाड की तरफ ही वो मान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर उधर ही है और उसी तरह की एसोसिएशन में है जी। तो इट हैज़ टू बी सीन। और इनकी पॉलिसीज़ का असर ज़्यादा इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी मेरे को नहीं लगता है ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा चेंज होगी, बट डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में चेंज आएगा। वहाँ पे जो एबोरिजिनल लोग हैं,
उनकी वॉइसेस बेटर सुनी जाएंगी, उनके लिए अच्छी पॉलिसीज बनेंगी, वुमेन ओरिएंटेड पॉलिसीज बेटर बनेंगी, ऐसा माना जा रहा है जी। सो मेरे को नहीं लगता है कि हमारे रिलेशन पॉजिटिवली शायद और बेटर हो। अभी प्रधानमंत्री के साथ उनकी बायलैटरल वार्ता क्या होती है उसके बेसिस पे हम इस चीज़ को एक बार दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल सर। WHO ने आशा वर्कर्स को सम्मानित किया है, इंडिया में जो उन्होंने काम किया कोविड के दौरान उनको उसके लिए सम्मानित किया, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। देखो ये इंडिया के लिए बड़ी अचीवमेंट, हर पॉजिटिव चीज़ को मानना चाहिए जी, पर मेरे को लगता है ये आशा वर्कर्स का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत ज़रूरी है जी। आज अनफॉर्चुनेटली अभी भी आशा वर्कर से रेगुलरली काम लिया जाता है पर इसको वॉलंटरी वर्क के अंडर रखा गया है जी, जिसके कारण उनको रेगुलर सैलरी नहीं मिलती है। मेरे को ये लगता है जो मिनिमम सैलरी लॉ है एटलीस्ट, क्योंकि आशा वर्कर ज़्यादातर पुअर फैमिली से आते हैं बट वो जो सेक्रीफाइस करते हैं, हमारे टीबी के मरीज़, हमारे जो भी सिवियर पेशेंट्स हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनकी हैंडलिंग का काम सारा आशा वर्कर्स के थ्रू होता है। आज इंडिया में कम से कम 10 लाख आशा वर्कर्स हैं, हर स्टेट के थ्रू उनको एक फिक्स सैलरी मिलती है, बड़ी मिनिमम बेयर मिनिमम सैलरी मिलती है, 3,000 4,000 5,000 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, और बाकी पर पेशेंट या वॉलंटरी वर्क के एक ऑनरेरियम की तरह आता है जी। तो मेरे को ये लगता है कि आज इंडिया को अगर WHO ने रिकॉग्नाइज किया तो हम पूरे इंडिया को, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल स्टेट, उनको आशा वर्कर्स की इंपॉर्टेंस हमारे हेल्थ सिस्टम में रिकॉग्नाइज करनी चाहिए जी, उनको रेगुलराइज करना चाहिए ताकि उनको एक बेयर मिनिमम सैलरी मिले, राइट, और उनकी ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन पे और फोकस करना चाहिए। तो हम सैल्यूट करते हैं आशा वर्कर्स को, जो वो हमारे देश के हेल्थ सिस्टम में जो बेसिक, जो आखिरी गांव तक लास्ट माइल जो सर्विस वो प्रोवाइड करती हैं, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। जी बिल्कुल सर। और एक आखिरी सवाल सर, यूक्रेन और रशिया में जो पिछले लंबे समय से चल रहा है, पोलैंड ने कहा है कि पोलैंड का मानना है कि अब यूक्रेन को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। देखो इट इज़ पोलैंड ने ये बोला है, हम पंजाब टुडे पे हर बार यही बात करते हैं कि यूक्रेन फॉर डिसाइड फॉर इट्स ओन फ्यूचर। जी। अब पोलैंड ने किस पर्सपेक्टिव से बोला है, शायद नेटो मेंबरशिप, राइट, उस पर्सपेक्टिव से बोल रहे होंगे, पर मैं ये कहता हूँ कि नेटो मेंबरशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के लोगों का फ्यूचर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। हम वॉर को जब दूर से देखते हैं तो एक खबर होती है जी, पर वहाँ पे लाखों बच्चे, औरतें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, और इवन आदमी भी, हम कई बार एक आदमी भी जो फील करता है उसको इग्नोर कर देते हैं, और हमारे अंदर एक ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है बच्चों और औरतों के लिए, पर एक कुछ बड़ा हर वर्ग के लोग, बुजुर्ग, बेसिक जब सुविधाएं नहीं मिलती हैं। आप इमेजिन करो, आप अपने घर में बैठे हो, बिजली नहीं है जी, घर पे कोई बीमार है, आपको पता नहीं है दवाई कहाँ से मिलेगी, डॉक्टर कहाँ से आएगा, और ऊपर से बम गिर रहे हैं, आपके बच्चे कई साल तक पढ़ाई नहीं दोबारा कर पाएंगे, पूरी की पूरी जनरेशन, ये सारा इम्पैक्ट हम समझ नहीं पाते हैं जब तक दूर से हम इसको खबरों की तरह देख रहे होते हैं जी। आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन, मेरे को लगता है कि देखो नुकसान तो ज़्यादा यूक्रेन का हुआ है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, इसको मैं हार मानना नहीं बोलूँगा, इसको एक स्टेप पीछे लेना बोलूँगा जी, कि रशिया के साथ सीज फायर अनाउंस करें, राइट, कुछ टर्म्स में वो रशिया से एग्री भी करें जी, वो जो वेस्टर्न इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज हैं, नेटो है, उनकी बातों में आना बंद करें जी। उन्होंने उनको हथियार देके उनके लिए उनकी मिजरी बढ़ाई है जी, उन्होंने अपने लोगों की मुश्किल बढ़ाई है, और मेरे को लगता है कि यूक्रेन में एक बार फिर से यूक्रेन के लोग डिसाइड करें कि उनको किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए। क्या ऐसी गवर्नमेंट चाहिए? हम बड़े आसानी से ब्लेम कर देते हैं कि भाई रशिया अग्रेसिव है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ने हर तरफ यही बोल रहा है जी रशिया की अग्रेसिव। रशिया 1 साल से वार्निंग दे रहा था नेटो में नहीं जाना जी, नेटो, हमारा देश रिस्क पे आएगा, आप ये एक्शंस लेने बंद करो। 1-1.5 साल से आर्मी आसपास वहाँ पे उन्होंने तैनात कर रखी थी जी। क्या वहाँ का प्रेसिडेंट ये अनाउंसमेंट नहीं कर सकता कि हम नेटो में बिल्कुल नहीं जा रहे जी? क्यों वो नेटो या उनके लीडर्स की बातों में आके बोल रहे थे जी हम तो जाएंगे ही जाएंगे? एंड में नुकसान किसका हुआ? यूक्रेन के लोगों का। वो तो प्रेसिडेंट तो हीरो बन गए जी, और हर कोई कह रहा है देखो जी क्या कुर्बानी दे रहे हैं, क्या कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी ले रहे हैं जी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त यूक्रेन में शांति बहाल की जाए, रशिया और यूक्रेन बैठें एक सीनियर लेवल पे, उनकी मैं तो कहता हूँ सीधा प्रेसिडेंट लेवल पे मीटिंग हो, इस लड़ाई को इमीडिएटली रोका जाए, राइट, स्टेटस को चाहे मेंटेन हो, जो भी वो डिसाइड करते हैं, राइट, फ्यूचर का एक पाथ डिसाइड हो जाए कि ऐसे ऐसे डी एस्केलेशन और फर्दर होगी
जी। राइट। पूरी दुनिया यूक्रेन के लोगों को सपोर्ट करे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनाने में, जी। राइट। उनके बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ, उस पर असर ना आए, जहाँ जहाँ भी कंट्रीब्यूशन हो सकती हैं हों। और ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट को पूरी, मेरे को लगता है कि यूक्रेन के लोग तो यही नसीहत देते होंगे, आपने यूक्रेन के लोगों को एक वॉर में धकेल दिया। आपकी एक स्टेटमेंट सिर्फ ये कहना जी हम नेटो में नहीं जा रहे हैं, जी, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं होनी थी। यूक्रेन सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज एक वेस्टर्न कंट्री जिसने आपको प्रेसिडेंट बनाने में हेल्प की, जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उस तरीके से आप अपने देश के लाखों लोगों की जान खतरे में डाल दो, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं ज़ेलेंस्की को बिल्कुल भी हीरो नहीं मानता। जी, शुक्रिया सर। यूक्रेन हो, रशिया हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, पूरे विश्व में शांति आनी चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए। इसी तरह की इनसाइट्स देखने के लिए देखते रहिए पंजाब टुडे। नमस्कार।